گلگشت میں کمپریہنسو گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے گیٹ کے ساتھ پبلک ٹوائلٹ کی تعمیر کا کام پھر شروع کر دیا گیا۔ گزشتہ روز کمشنر ملتان اور سی ای او ایجوکیشن نے روہی کی خبر کا نوٹس لیا تھا اور کام روک دیا تھا، مگر آج کام پھر پبلک ٹوائلٹس کا دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اسکول کے باہر موجود ہمارے رپورٹر سید زہیب بخاری سے۔ زہیب بتائیے گا، جب کمشنر ملتان اور سی ای او ایجوکیشن نے کام روکنے کا کہہ دیا تھا تو دوبارہ کام کس نے شروع کروایا، کون ذمہ دار ہے اور کس کے کہنے پر شروع کیا گیا؟ آج بالکل ایسے ہی ہے کہ کل یہاں پر جو ہے وہ روہی نے اس ایشو کو جو ہے وہ اجاگر کیا تھا اور اس پر کمشنر ملتان عامر کریم خان اور اس کے ساتھ ساتھ سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر صفدر حسین واغا کی جانب سے اس کا نوٹس بھی لیا گیا تھا۔ نہ صرف نوٹس لیا گیا تھا بلکہ کام روکنے کے اقدامات بھی جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے، اور کمشنر ملتان نے ایک جاری اجلاس میں جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ چیئرمین ڈیولپمنٹ ہے وہ موقع پر جائیں اور مجھے رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں۔ لیکن آج اتوار کا روز ہے، اسکول بند ہے، لیکن آج دوبارہ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جو کام ہے وہ دوبارہ سے یہاں پر شروع کر دیا گیا۔ میرا کیمرامین اگر ارشد گجر صاحب اگر آپ کو یہ صورتحال جو ہے وہ دکھا سکیں تو اس وقت یہاں پر جو مزدور ہیں وہ دوبارہ سے کام ان کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے، اور کیونکہ کمشنر ملتان کے احکامات کی اگر ہم کہیں کہ خلاف ورزی ہے تو یہ بھی بیجا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اسی تناظر میں ہم آگے جاتے ہیں، جو مزدور حضرات یہاں پر کام کر رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر ایک دیوار پہ لگے نوٹسز اگر میرا کیمرامین ارشد گجر صاحب آپ کو دکھا سکیں تو یہاں نوٹسز بھی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ اسٹے کے حوالے سے غالباً یہ نوٹس ہیں، تو اس کے باوجود کام جو ہے وہ یہاں پر شروع جو ہے وہ کروا دیا گیا۔ کیا سمجھتے ہیں، کل تو یہاں پر کام رکوانے کے اقدامات جاری ہوئے تھے، آج دوبارہ شروع ہو گئے، مستری مزدور دوبارہ، اس کے باوجود پھر بھی کام روکا نہیں جا رہا ہے اور کام چل رہا ہے۔ جی کام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ مزدوروں سے بھی اس ساری صورتحال پہ بات کر سکے جو کہ یہاں پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور انہی سے ہی یہ جان سکیں گے کہ یہ کس کے احکامات پر جو ہے وہ آج یہاں پر کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر اسی سلسلے میں کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ روڑی جو ہے وہ یہاں پر کوٹی جا رہی ہے جو کہ یہاں پر بنیادوں میں جو ہے وہ بچھائی جائے گی، اور اس کے بعد ایک پورا سٹرکچر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ تو ہم انہی سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیوں اہم خبر ہے اس وقت آپ کو بتائیں، گلگشت میں کمپریہنسو گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے گیٹ کے ساتھ پبلک ٹوائلٹس کی تعمیر کا دوبارہ کام شروع کر دیا گیا۔ گزشتہ روز کمشنر ملتان اور سی ای او ایجوکیشن نے روہی کی خبر کا نوٹس لیا تھا اور کام روک دیا تھا، مگر آج پھر سے پبلک ٹوائلٹس کا کام دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے۔ جب کمشنر ملتان اور سی ای او ایجوکیشن نے کام روکنے کا کہہ دیا، دوبارہ کس نے کام شروع کروایا، کون ذمہ دار ہے، آپ کو بتائیں تعلیمی مرکز کے دروازے پر واش روم بنانے کا پرتعاون منصوبہ گلگشت گرلز اسکول کے باہر پبلک ٹوائلٹ بنانے کا کام دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز کمشنر ملتان اور سی ای او ایجوکیشن نے روہی خبر کا نوٹس لیا ہے۔ زہیب بخاری سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے، زہیب بتائیے گا۔ پر کام کر رہے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کام تو روک دیا گیا تھا، اس کے باوجود کام شروع ہو گیا؟ ہمیں تو سر نہیں پتا۔ کس نے نہیں پتا؟ نہیں سر، ہمیں لودھی صاحب نے آج بھیجا تھا، ہم لوگ آ گئے صبح۔ ٹھیک ہے، 8 بجے آئے ہوئے، 8 ساڑھے 8 بجے۔ وہ کمشنر ملتان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا اور نوٹس جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو ٹھیکیدار کون ہے جس نے آپ کو یہ اقدامات جاری کیے ہیں اس پہ کام؟ سر اس کا منشی ہے، وہ آگے میں کہیں گے ملنگ اس کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں وہ یہاں پہ بٹھا گیا ہے صبح 8 بجے، جو ہے وہ آپ کو یہاں پر بٹھا دیا۔ ہمیں وہ بٹھا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی بات کریں۔ تو یہاں بنایا کیا جا رہا ہے؟ یہاں باتھ روم ہے، ٹوائلٹ ہے پبلک کے لیے۔ ٹھیک ہے، پبلک کے لیے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم مسلسل ان کو بھی کال، میرا کیمرامین ارشد گجر اگر آپ کو دکھا سکیں تو مسلسل نمبر جو ہے وہ ملایا جا رہا ہے، تو ان کا نمبر بھی جو ہے وہ اس وقت بند جا رہا ہے۔ اگر ارشد گجر صاحب یہ مناظر دکھا سکیں ہمارے کیمرامین سکرین پر دیکھتے ہوئے، تو یہ اس وقت نمبر بند جا رہا ہے بارہا مرتبہ ڈائل کرنے کے بعد۔ تو جب تک یہ اقدامات نہیں آتے آپ کام جاری رکھیں گے؟ دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا نا، ہمیں تو آج یہ تو روڑا کوٹنے کے لیے ہم لوگ ابھی چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم 10 پہ آدھا گھنٹہ یا شام تک ہوں گے۔ لیبر ہو رہے گی پھر وہ ہو رہا ہے کہ وہ ان کا کام ہے، ہمیں وہ اب بنائے نہ بنائے ہمیں تو کوئی پتا نہیں ہے سر۔ ہم نے یہ روڑی کوٹنے اور چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، روڑی اس کو اندر ڈالیں گے نہیں؟ ہم لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے سر یہ تو کوٹنے اور چلے جانا ہے بس۔ ٹھیک ہے جی، لیکن کام کا جو سلسلہ ہے وہ تو اس وقت جو ہے وہ جاری ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام اسی طریقے سے جو ہے وہ جاری رہے گا۔ کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے،
उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि वो इस सारे मामले पर जो है वो क्या राय जो है वो रखते हैं। लेकिन हमने जब उससे रब्ता किया है और मुसलसल रब्ता करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त कि वो हमारी कॉल उठा लें, जो जिन लोगों ने इनको यहाँ पर भेजा है, तो हम मजीद जनाब यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल पर वो क्या जो है वो कहना चाहेंगे। क्या समझते हैं, काम शुरू हो रहा है? कल तो नोटिस हो गया था। नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। कल कमिश्नर साहब ने खुद नोटिस लिया है, तो फिर भी इधर वॉशरूम बन रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स। ये बच्चियां कहाँ जाएंगी जो स्कूल जाती हैं? इनका क्या उन्होंने किया है कमिश्नर साहब ने? तो मेहरबानी करके इसको बंद करवाएं जितना जल्दी हो सकता है। बंद करवाएं। ये कागज बताएंगे, ये कागज जो है वो किस हवाले से आपके पास जो है और इसका क्या कानूनी मामलात हैं इस कागजात के हवाले से? इसका हमने इधर के रिहायशियों ने नोटिस लिया हुआ है, ठीक है। 9 तारीख का ये नोटिस है, पर 27 तारीख की पेशी डाली हुई है, लेकिन फिर भी लेबर इसके बावजूद भी काम नहीं रोक रही, ठीक है। इस जगह का कमिश्नर मुल्तान ने भी नोटिस ले लिया है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी लेबर यही कह रही है कि हम इस नोटिस को कुछ नहीं समझते, हमने काम करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। वो नहीं अमल दरामद नहीं, वो इसे काम जिसको जारी रखा हुआ है, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुन रहे। वो कह रहे हैं इस नोटिस को हमें कागज समझते हैं, ठीक है, हम इस नोटिस को कुछ भी नहीं समझते। ये तक कि हमने नोटिस दीवार पे भी चिपकाए हुए हैं, ठीक है, उसके बावजूद ये काम स्टार्ट है। ये वही नोटिस है जो इस वक्त आपके हाथ में? वही नोटिस है। दिखाएं जी, मेरा कैमरामैन अरशद गुलजार दिखा सके, जो कि आपने इस जगह पे कानूनी कार्रवाई की है, स्टे कानूनी कार्रवाई की है। 9 तारीख का ये नोटिस है, बड़ा जज साहिबा ने दिया हुआ है, ये हमने चिपकाए भी हूँ, फोटो का भी लेबर। जी शुक्रिया। ज़ोएब बुखारी हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, गुलगश्त में कम्प्रीहेंसिव गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के गेट के साथ पब्लिक टॉयलेट की तामीर फिर से शुरू कर दिया गया। गुज़श्ता रोज आपको बताया कमिश्नर मुल्तान और सीईओ एजुकेशन ने रोही की खबर का नोटिस लिया था और काम रोक दिया था, मगर आज फिर से पब्लिक टॉयलेट्स का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाके बेट भुट्टो में फ्लड सर्वे जारी है। मुतासरीन का फ्लड सर्वे अमला पर रिश्वत और मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम है। फ्लड सर्वे मेरिट पर नहीं हो रहा। मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब और डीसी रहीम यार खान से फ्लड सर्वे में शफाफियत लाने की अपील है। तरंडा मोहम्मद पनाह से अपडेट करें, नवाही इलाके में बेट भुट्टो में फ्लड सर्वे जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे गुलाम अली से। गुलाम अली, बताइएगा। इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद पनाह के नवाही इलाका बेट भुट्टो में मौजूद हूँ, जहां पर सैलाब ने हर तरफ तबाही के मनाजिर जो है वो पेश कर दिए हैं। लोगों के घर, फसलें, सब कुछ जो है पानी बहा के ले गया है। यहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे भी जारी है। मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सर्वे टीमें जो पहुंची हैं वो किस तरह काम कर लिए हैं, क्या इनके नुकसान का भी इंदराज किया गया है कि नहीं। जैसे टीम जो काम करे ना पेन तो नुकसान लिखा गया, क्या क्या लिखे हैं? अस्सलाम वालेकुम सही असा जैसे खुद टीम वाले मौजूद है, वही उन्हें के खर्चा पानी असा हाँ करना, असा अपने घर बनाऊं या खर्चा पानी उन्हें को दूं, असा मजबूर है, असा खर्चा नहीं दे सकते, उन्हें लिखा गया नहीं सर। केड़ा पटवारी है जड़ा इलाके च काम करे ना पे, चोखे लोग ना सर्वे थी चुके, तो क्यों नहीं किया गया? चोखे पैसे मंगे गए, जेरे पैसे देने पे 10,000 रुपये फी कस मंगते पे। इजाज वाला पटवारी है, वो इतना आया भी है तो लिखा कहीं से वापस चला गया, वहां के पैसा कहीं तो लिखा भी नहीं मिला। जी सैलाब मुतासरीन का ये इल्जाम है कि यहाँ पर जो फ्लड सर्वे कर रहा है इजाजुल हक नामी पटवारी है, जिसने मुबैना तौर पर अपने एजेंट इलाके में छोड़े हुए हैं, जहां पर उनसे मुतासरीन से रिश्वत तलब की जाती है। जो रिश्वत देता है उसका सर्वे किया जाता है, जो नहीं देता उसे हीले बहानों से जो है तनख्वाह दिया जाता है। ये मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं मुबैना करप्शन पर। वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से यही अपील कर रहे हैं। एक माह गुजर गया लेकिन हथीजी के सैलाब मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं। तबाहशुदा घरों के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। खातीन और बच्चे दस्ती झोंपड़ी बनाकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। हुकूमत ने सर्वे नहीं किया, मुतासरीन की मदद की अपील है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अतीक लॉन्ग से। मलिक अतीक, बताइएगा। मौजा धूड़ कोट के मकाम पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए दरिया सतलुज की तबाहकारियों के बाद 1 महीना गुजरने के बाद जो सैलाब मुतासरीन है वापस घरों को लौटे हैं, तो उनके जो घर हैं वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। मेरे साथ जो मुतासरीन मौजूद हैं उनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। जी सिंह, क्या आखे सो 3 दिन बाद ऐसे ना ऐसी है ना कोई कहनी आया इतना झोपड़ियां बनाए ना जई बचे ना कशा गानी बचा, खाली जो गेट बचाई बैठा बात बिया कशा गानी बचा, ना खावा दे ना कशा गाने ना फसना पर ठीक है, कशा नहीं बचे। मैं यो तो करे ना घना ऐसी साहब
3 दी थी ने 3 दी दे बाद कोई कह नहीं आया अंदर पूछे ने ये झोपड़ियां बनाए से हुन बाहर रावने ता हुन सुते पे हूं बाहर रावने क्या थी से ये तुम्हारी मेहरबानी नवे घर बर्बाद हो तुम्हारी मेहरबानी होवे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना भी हमने जब घर पहुंचे हैं तो कुछ चीज़ें हमें मिली हैं जिनमें गेट वगैरह थे, तो हमने दस्ती झोंपड़ी बनाकर अब यहाँ भी गुजारा कर रहे हैं। लिहाजा हुकूमत वक्त से यही अपील की जा रही है कि खुदारा हमारे हाल पे रहम करें और हमें ये जो घर हैं नए सिरे से बनवा कर दें। नौशहरा जदीद की बस्ती संजरानी के मकीनों की घरों को वापसी, मुतासरीन सूरत हाल पर परेशान हैं। घर मलबे के ढेर मिले, सर्वे टीम भी ना पहुंच सकी। कैसे निज़ामे जिंदगी बहाल करें, हुकूमत नुकसानात का फौरी इजाला करे। बेयारो मददगार सिला मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक हबीब लॉन्ग से। मलिक हबीब बताइएगा। बस्ती संजरानी के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए सैलाबी सूरत हाल की, तो साल 2025 का जो सैलाब है, इस टाइम ऐसी इन्होंने सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। मेरे आकब में आप देख सकते हैं ये फैमिली का वहद मेंबर है जो जिसका एक ही कमरा था वो जमीन बोस हो गया। बात करने की कोशिश करेंगे। जी भाई, ਤੁਹਾਡਾ सैलाब जो जी पानी क्या रोही चैनल दे शुक्रिया अदा है। सब बनते बैठे से कैंप लई कैंप भी अस आरती जोर लई बैठे थे, उन्हें आए सारी आवाज उठवाए ने। उन्हें दी मेहरबानी वाला सही था आगे से इतना उन्हें दी रोही चैनल दी मेहरबानी साडे घर आ गए। साडे घर को डिठे ने आन साडा एक मेरा कमरा मेरी कमरे दी तबाही तई पी है। ये देखो, ये शामिल देखो, देखो देखो मेरा क्या बचा पे, ये मेरे टीआर गार्डर पे मेरा कुछ नहीं बचा। इन्हें दी मेरे मरे नवाज अपील है, मेहरबानी करो तुसा आए क्या आवे अपना घर अपनी छत, मेहरबानी करो साको अपना घर अपनी छत चाहिए। मेहरबानी करो तुसा जितना कोशिश थी सके सारे उत्ते तावन करो। सारी पूरी बस्ती तबाह, मेरा पूरा जर्द तबाह, मैं किवें करा। जी, जैसा कि आपने सुना भी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का अपना घर अपना छत के तहत जो प्रोग्राम था, तो सैलाब मुतासरीन का ये भी कहना है भी वो तो एक प्रोग्राम था मरियम नवाज साहिबा का, तो लिहाजा इस टाइम हम सैलाब की जद में आकर ये जो एक कमरा था बेचारे का, ये ज़मीन बोस हो गया मुकम्मल तौर पर। ये एक निशान तक नहीं है। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से अपील की जा रही है कि फिल फॉर इस बात का नोटिस लेकर इस गरीब आदमी को जो है तो इसका घर और इसको छत मुहैया की जाए। जी, रोही बना सैलाब मुतासरीन की आवाज़। लोधरा की सैलाब ज़दा बस्ती सुनियारावाला में रोही की आवाज़ पर राशन तकसीम किया गया। समाजी रहनुमा मखदूम फयाज हुसैन कुरैशी 300 अफराद के लिए राशन लेकर पहुंच गए। चावल, दालें, दूध और दीगर अशिया शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना आसिफ हनीफ से। बिल्कुल, बस्ती सुनियारा वाली जो हालिया सैलाब में पूरी तरह से दरिया बुर्द हो गई, निशानात तक नहीं बचे, वहां रोही की पुकार पर लोधरा के मारूफ समाजी कारकुन और साबिक सदर ठेकेदार एसोसिएशन जनाब मखदूम फयाज हुसैन कुरैशी ने यहाँ की बस्ती के 35 खानदानों में अभी राशन तकसीम किया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बरखुरदार, उनसे बात करेंगे। बेटा, आपका नाम क्या पूरा? जी, मेरा नाम शहरोज कुरैशी है। आपके वालिद साहब भी हैं माशाल्लाह। ये राशन आपने दिया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बस मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जिसकी भी मुखिर हज़रात हैं उन सबको चाहिए कि वो इन मुस्तहकीन की इस मौका पर मदद करें, क्योंकि ये बेचारे जितने भी लोग हैं ये हमारे मतलब अल्लाह ताला ने इनको असर छोड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया, इनकी हमें मदद करनी चाहिए, इनके लिए हमें अपनी तमाम तर कोशिशें करनी चाहिए इनके लिए। अब्दुल्ला बेटा, आप लोग बड़े मुतासिर हैं, ये फयाज हुसैन कुरैशी साहब राशन लेकर आए, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं कुरैशी साहब का दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत अता करे कि इन्होंने सैलाब मुतासरीन जो इमदाद के मुंतज़िर थे उन्हें अपने रिज़्क़ में से उनका हिस्सा निकाला। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, मेहरबानी है इनकी। बिल्कुल, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। हाफिज साहब है यहाँ मस्जिद यहाँ वो बस्ती के साथ ही दरिया बुर्द हुई और ये बेचारे ये भी बेसरो समानी का आलम है। हाफिज साहब, क्या खेसो अर्जे के साड़ा बस्ती सुनारियां वाली मुकम्मल बुर्द हो चुकी है। साकू कहीं ने इन वेले तक कोई मतलब फंड राशन नहीं दिता। साढ़े बच्चे बहुत भूख से गुजार रहे थे। लिहाजा कुरैशी साहब ने बड़ी मेहरबानी की थी और साकू पहले मरतबा फंड मिलता पे। ये बिल्कुल कुरैशी साहब ने मेहरबानी की और यकीनन ऐसे बुजुर्ग हमारे जो हमारे लोधरा का रोशन जो है चेहरा है, मुस्बत चेहरा है, इन्होंने आज मेहरबानी की है रोही की पुकार पर
इन लोगों के लिए राशन लेकर आए और इनके लिए बहुत सी दुआएं हैं। जी, गंदम की गैर कानूनी निकलो हमर रोकने के लिए फूड डिपार्टमेंट मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को मरासला लिख दिया गया है। जिला के 6 दाखिली और खारजी रास्तों पर बनाई गई चेक पोस्टों पर फोर्सेस का अमला तैनात करने का मुतालबा है। आपको बताएं, गंदम की गैर कानूनी नकलो हमर रोकने के लिए फूड डिपार्टमेंट मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को मरासला चेक पोस्टों पर फोर्सेस अमला की तैनाती का मुतालबा कर दिया है। झांगड़ा इंटरचेंज मुल्तान और सखर चेक पोस्ट पर अमला तैनात किया जाए, ये मरासले में लिखा गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा। जी खाकान, ये गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल का मामला है। आजकल पंजाब हुकूमत गंदम के हवाले से काफी स्ट्रिक्ट हुई हुई है और अपने रेट्स के तहत खरीद और फरोख्त करने पर किसानों को पाबंद किया जा रहा है। इस हवाले से दाखिली व खारजी रास्तों पर चेक पोस्टें बनाई गई हैं ताकि गंदम की गैर कानूनी नकलो हमल ना हो। उसके लिए बहावलपुर का इलाका है झांगड़ा इंटरचेंज, जहाँ से मुल्तान को रास्ता जाता है और सखर को, वहाँ पर 2 चेक पोस्टें बनाई गई हैं ताकि वहाँ से गैर कानूनी नकलो हमल ना हो सके। तो डिप्टी कमिश्नर को कहा गया है कि यहाँ पर हमें फोर्सेज वाला अमला तैनात किया जाए ताकि हम उनकी रोकथाम कर सकें। इसके अलावा उशरीफ इंटरचेंज मुल्तान और सखर को 2 रास्ते जाते हैं, वहाँ के लिए भी फोर्सेज मांगी गई हैं। और हेड राज का बहावलपुर का इलाका है और चन्नीगोट, यहाँ पे भी 2 चेक पोस्टें बनाई गई है। वहाँ पे भी फूड डिपार्टमेंट के फूड इंस्पेक्टर जो कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हैं, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर फरहान फारूक से अमला देने की दरख्वास्त की है। जी, बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, हमारे साथ तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, फूड अथॉरिटी की चिश्तिया रोड पर जाली खोया बनाने वाले यूनिट पर कार्रवाई है। जाली खोया बरामद होने पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बहावल नगर में जाली खोया तैयार करने वाले फूड अथॉरिटी के निशाने पर डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में चिश्तिया रोड पर वाक़े खोया यूनिट पर कार्रवाई की गई। 70 किलो खोया, 37 किलो पाउडर समेत भारी मिकदार में मटीरियल भी जब्त कर लिया गया। फूड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फूड अथॉरिटी चिश्तिया की कार्रवाई, जाली खोया बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। कासिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फूड अथॉरिटी की जानिब से चिश्तिया रोड पर एक खोया यूनिट पर कार्रवाई की गई है और इस दौरान मुजरे सेठ और जाली खोया तकरीबन जिसकी मिकदार जो 70 किलोमीटर बनाई जाती है उसे कब्जे में ले लिया गया और फौरी तौर पर फूड अथॉरिटी की जानिब से इस खोया को तलब कर दिया गया, जबकि यूनिट के जो मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जो बनाने वाला सामान था, जो कि खोया वगैरह, वो तमाम सामान जो है वो कब्जे में ले लिया। तो इस तरह जो है वो फूड अथॉरिटी की जानिब से चिश्तिया रोड बहावन नगर में एक बड़ी कार्रवाई की गई है और मुजरे सेहत और नाकस से खोया जो है उस यूनिट पर कार्रवाई की गई है और 70 किलो जो खोया था उसको कब्जे में लेकर तलब कर दिया गया और मुकदमा दर्ज के मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई है। कोट मोमिन से जाली दूध और खोया बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया। मौका पर भारी मिकदार में यूरिया और स्किम मिल्क पाउडर तलब कर दिया गया। मशीनरी जब्त करके यूनिट सील कर दिए गए। मालिकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अपडेट करें, सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, कोट मोमिन से जाली दूध और खोया बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया। मौका पर भारी मिकदार में यूरिया और स्किम मिल्क पाउडर तलब कर दिया गया। मशीनरी जब्त करके यूनिट सील कर दिए गए। मालिकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। मुल्तान में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी कबूतर मंडी में मसाइल कम ना हो सके। सिक्योरिटी ना होने की वजह से चोरी की वारदातों में इजाफा है। शहरियों की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान चोरी हो रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है अहमर खान ने। अहमर खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में कबूतर मंडी के हवाले से बात करें तो मुल्तान में कबूतर मंडी जो है वो इतवार और जुमे के रोज जो है वो यहाँ पर जो है वो दौलत गेट के पास जो है वो लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी ना होने के बाद जो है कबूतर मंडी के अंदर से मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल चोरी और दीगर सामान चोरी होने के जो है वो वारदातें जो है वो ज़्यादातर रिपोर्ट होने लगी और इसी हवाले से सिक्योरिटी ना होने के बाद जो है ये यहाँ पर शहरियों को जो है वो यहाँ पर आने वाले कारोबारी जो शख्सियात है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद जो है यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर जी, यहाँ पर मोटरसाइकिल उसी टाइम उठा लेते हैं। मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई 6 जून को, आज तक रिकवरी नहीं हुई और बंदा भी पकड़ चुके हैं। वो यहीं मौके पे ही पकड़ा गया था, लेकिन कोई रिकवरी नहीं, कोई वो नहीं है, सुनवाई नहीं है। तो कई दफ़ा थाने गया, अब आना शाम को आना, मैडम वो काम पे
मसरूफ है। आज तक कोई है ही नहीं यहाँ पर पूछ कुछ, किसी ने कोई वो नहीं किया जी। हमारे मुतालबा भी ये है कि यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी जो है ना वो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि यहाँ पे मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा चोरी होती हैं और किसी की कोई सुनवाई नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। बस जो है ना थाने जाओ, टकरे मार के थाने से घर आ जाओ, फिर जाओ टकरे मार के थाने से वापस आ जाओ, बस यही काम है और दूसरा कोई काम नहीं है। मैं आज तक नहीं जी बिल्कुल, यहाँ पर जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी कबूतर मंडी जो है वो मुल्तान में लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी ना होने से जो है वो काफ़ी इनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है वो मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल चोरी और दीगर जो है वो सामान चोरी की वारदातें जो है वो रोनुमा हो रही हैं। मजीद जो है यहाँ पर शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है ये जो कबूतर मंडी है जो कि जुमे और इतवार के रोज़ लगाई जाती है, तो इसी हवाले से इनके जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो किया जाए ताकि चोरी की वारदातें जो है वो कम हो सकें। जी शुक्रिया अहमद खान। रंगीलपुर का सीवरेज मंसूबा मुकम्मल है, मगर रोड की कारपेंटिंग 3 साल बाद भी नामुकम्मल। ठेकेदार को फंड्स जारी होने के बावजूद काम ताहाल मुकम्मल ना हुआ। इलाका मकीन ठेकेदार के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, शदीद नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बिलाल यूनुस से। जी बिल्कुल, सीवरेज मंसूबे के तहत आज से 3 साल पहले तोड़े जाने वाला रोड जो है वो आज तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। तकरीबन ये रोड जो है वो 3 किलोमीटर की ये रोड बनता है और 1.5 किलोमीटर का रोड जो है वो आगे से मुकम्मल कर दिया गया, लेकिन 1.5 किलोमीटर का रोड जो है वो अभी तक ठेकेदार की जानिब से मुकम्मल नहीं किया जा सका। हमारे साथ यहाँ के इलाके के लोग मौजूद हैं जो ठेकेदार के खिलाफ सरापा एहतजाज भी हैं और ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा भी करते नजर आते हैं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद संधू से कि लिहाजा इस रोड को जो है वो ये जो दरीना मुतालबा है लोगों का, इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इनसे भी जान लेते हैं। इमरान है इसका नाम ठेकेदार का, और हमें ये समझ ही नहीं आ रही। 12 दफ़ा हमने अपना मूसा गिलानी साहब जो MNA हमारे, उनसे भी इनको कॉल करवाई है कि भाई ये बना दो। अब रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी कॉल करवाई है इनको, लेकिन वो उसके जो है ना सुनता ही नहीं है बात को। वो इग्नोर ऐसे करता है जैसे किसी जान पहचान है, अल्लाह जाने क्या ताल्लुक है। अब ये देख लें, लास्ट टाइम भी एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, 2 औरतें थी और एक मर्द था। वो बेचारे मौके पे जो है ना औरत की डेथ हो गई है, सामने गटर खुला हुआ था। अब क्या को आगे गटर तो बनवा लिया इससे हमने, लेकिन अब ये फिर गुम हो गया। जब भी कॉल कराई जाती है वो यही कहते हैं कि बस हम 15 दिन तक शुरू कर देते हैं। 2-3 लोगों को भेज के गटरों के ऊपर से ढक्कन शकन सेट करवा देते हैं, सफाई करवा दिया जाता है। उसके बाद फिर यही बात है कि हम 15 दिन बाद आपका रोड शुरू कर रहे हैं। तो ये रोड की हालत आप देखें, बहुत सारे हादसा यहाँ हो चुके हैं। रात को कभी कोई इश्यूज बन जाता है, कभी कोई इश्यूज बन जाते हैं। तो हम यहाँ के रहने वाले, हमें बहुत ज़्यादा तंगी का सामना है। मुतालबा करते नजर आते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इस इलाके के लोगों की मसाइल और परेशानियां दूर हो सके। जी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदा बिलाल यूनुस हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नवाबों के शहर बहावलपुर को खूबसूरत बनाने का मिशन है। शहर की मस्जिद और बाजार की ताज़ीन और आइश का काम शुरू कर दिया गया। फरीद गेट, शाही बाजार समेत अल सादिक मस्जिद की ताज़ीन और आइश जारी है। खूबसूरती में इजाफे के काम में 44 करोड़ रुपए लागत आएगी। मजीद तफसीलात बताएंगे महमूद जहीर। के चंद बेहतरीन और खूबसूरत ज़िलों में बहावलपुर का शुमार होता है और बहावलपुर खूबसूरत तरीन ज़िला है। इसकी हेरिटेज, इसके कल्चर, इसकी सकाफत बहुत रिच है। इस वक्त भी हम मौजूद है बहावलपुर के दिल फरीद गेट पर, जिस पे रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है। वॉलेट सिटी लाहौर इस पर काम कर रही है। इसकी तमाम की तमाम यूँ कह लें तारीखी अहमियत और सकाफती अहमियत को बचाया जाएगा। 44 करोड़ रुपए से ये काम शुरू किया जा रहा है। फरीद गेट की रेनोवेशन होगी, इसकी बहाली होगी, खूबसूरत बनाया जाएगा। साथ ही मुल्क का शाही बाजार है, इसे खूबसूरत बनाया जाएगा और नवाब साहब के दौर की साथ एक मस्जिद को खूबसूरत बनाया जाएगा। शहरी इस पर क्या कहते हैं जी, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा मिर्ज़ा मुदस्सिर है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हुकूमत पंजाब की तरफ से इक़दाम किया गया इंतहाई ज़बरदस्त है। इससे मुल्क बहावलपुर की सखावत को ज़िंदा रहने में मदद मिलेगी और हमारी जो सखावत है उजागर होगी। दुनिया भर से लोग आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं इसकी सखावत देखने। माशाल्लाह तमाम गेट है, पहले भी इस पर डेवलपमेंट की गई है, मज़ीद डेवलपमेंट की जा रही है, तो बहुत खूबसूरत हो रहा है, खूबसूरत होगा। ये वो बाजार है, शाही बाजार, जो मेरे अकब में है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं सकलैन शाह साहब, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ आएँ। सकलैन शाह साहब ज़रा थोड़ा सा दिखाएं। ये वो बाजार है जिसको खूबसूरत तरीके से बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इसको भी सजाया जाएगा, इसकी भी तारीखी सकाफती कल्चरल अहमियत को बचाया जाएगा और इस मकसद के लिए 44 करोड़ रुपए के खतीर लागत से वर्ल्ड सिटी लाहौर ने काम शुरू कर दिया। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर।
फतेहपुर में कातिल MM रोड की तामीर का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अहले इलाका को रोड की खस्ता हाली की वजह से मुश्किलात का सामना था। MM रोड फेज 2 मियांवाली साइड की तामीर का काम भी आखिरी मराहिल में जारी है। चौक आजम ता मियांवाली MM रोड ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। मजीद तफसीलात बताएंगे चौधरी इमरान। मैं मौजूद हूं MM रोड फतेहपुर, जहां पर जो अरसा दराज से इस रोड की वजह से अहले इलाका जो मुश्किलात का उनको सामना था, आज ये विंटास कंपनी की जानिब से रोड जो है आखिरी मराहिल में दाखिल है। मियां वाली साइड का रोड जो है 2 फेस वो भी आखिरी मराहिल में दाखिल है। अवाम की जो है यहाँ पर खुशी की लहर दौड़ चुकी है अवाम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजुमन ताजान के जनरल सेक्रेटरी। इनसे जानते हैं कि इस रोड की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना था और आप ये क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया सर। ये जो हमारा MM रोड है ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था और जो पिछली कंपनी थी वो अधूरा काम छोड़ के चली गई थी। 3 साल हम लोगों ने अजियत में गुजारे हैं। अब शुक्रिया हमारी इंतजामिया का जिन्होंने इस रोड की दोबारा मंजूरी दी। विंटास कंपनी जो है उन्होंने बेहतरीन काम किया है और दिनों के अंदर इस काम को कंप्लीट किया है। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और जो फेज 2 है जो मियां वाली रोड की तरफ से आ रहा है उस पर भी काम तेजी से जारी है और इस काम को मुकम्मल होने से लोगों की मुश्किलात जो है वो अरसे दराज से जो है वो कम होगी। तो हम विंटास कंपनी का और हम अपनी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और वफाकी गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस मंसूबे को जल्दी पाया तकमील तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। जी बिल्कुल, जनरल सेक्रेटरी साहब का यही कहना है कि ये अरसा दराज से इस रोड की वजह से जो अहले इलाका है वो शदीद मुश्किलात का उनको सामना था। अब ये जो है बहुत ही जल्द इस काम को मुकम्मल कर लिया गया है। ये काम जो है रोड का ये आखिरी मराहिल में दाखिल है। इंशाअल्लाह ये आन करीब मुकम्मल कर लिया। मुल्तान में इतवार के रोज मज़ारात पर ज़ायरीन का तांता बन जाता है। ज्वेलरी, घड़ियां और मुख्तलिफ कीमती पत्थर के स्टॉल्स शहरियों और सयाहों की तवज्जो का मरकज होते हैं। मज़ारात के इतराफ लगाए गए तबरकात, चादरें, लॉकेटों की भी खरीद की जाती है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। मुल्तान में इतवार के रोज़ किला कोना कासिम बाग पर शहरियों की बड़ी तादाद आती है और किले पर मौजूद दरबारों पर हाज़िरी देने के लिए भी ज़ायरीन आते हैं। ऐसे में किले के पास और जो मज़ारात हैं, ख़ास तौर पर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का जो मज़ार है उसके बाहर कुछ गिफ्ट शॉप्स और स्टॉल्स कायम किए गए हैं, जहाँ पर मज़ारात पर ले जाने के लिए तबरुकात जिनमें तस्बीहां, टोपियाँ, उसके साथ साथ मन्नतों के धागे और बच्चों के लिए खिलौने भी हैं। जो लोग दूर दराज से आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, ख़रीदारी भी करते हैं और अपनों के लिए जो दूसरे शहरों से आते हैं वो तहाइफ भी लेके जाते हैं। तो आप कहाँ से आए हैं और क्या ले रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा से, फाटा से। तो आज इतवार भी है। इतवार भी, फिर इलाके जाना होता तो बच्चों के लिए यहीं से ले लेते, ज़रा सस्ता भी मिल जाता है और दरबार का नाम भी हो जाए, दरबार का तबरक ये तस्वीर पर ले जाते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? ये चैन है, ये 2 तस्वीर है और कोई खिलौने लेंगे तो वहाँ ले जाएंगे खैबर पख्तून। फिर वो पूछते हैं कहाँ से लिए तो हम कहते हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार से लिए। आप बताएं आप कहाँ से आए हैं? बाजी हम इधर मुल्तान से ही आए हैं। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पर क्या देखा है, क्या ले रहे हो, क्या किया? बस दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट भी ले रहे हैं, ये घड़ियाँ भी पसंद करी हैं और इस भाई ने ये दूर से आया हुआ जलालपुर से, ये हमारा मेहमान है और इसके लिए ब्रेसलेट भी और कुछ खिलौने इसके छोटे भाइयों के लिए लेने हैं और ये चैने शाने लेनी है। बस ठीक है, दुकानदार से भी बात कर लेते हैं। आपके पास क्या क्या सामान है और लोग आते हैं जो हाजिरी देने, वो यहाँ से क्या क्या चीज़ें लेते हैं? कुछ तबरुकात भी नज़र आ रही हैं। जी यहाँ तबरुकात भी है, चादर है, लोग दूर दूर से आते हैं, मनते मुरादें यहाँ मान के जाते हैं, फिर वो पूरी करने के लिए आते हैं। चादर तबरुक बांटने के लिए आते हैं, यहाँ बांट जाते हैं। उसके बाद फिर ये लोग बच्चे ले आते हैं, उनके लिए खिलौने, जुर्ली वगैरह, ब्रेसलेट ये रखे हुए हैं, वो ले जाते हैं। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत लॉकेट्स भी हैं जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है। इसके साथ मन्नतों के धागे हैं। यहाँ पर कुछ पत्थर जो हैं वो भी मौजूद हैं। लोग अपनों के लिए जो दूर दराज से आते हैं दूसरे शुक्रिया सुहेरा।